closed source softwares are those like who charge, and they provide limited services on their softwares to use. And uh, there are a lot of companies, like Google is one of them, Microsoft, and all other JetBrains, and other companies which provide like close which use closed source programs. So they are like, there is no source code, so there are no modifications as per your choice. So they are considered less interesting and thing. So okay, now the next question, which is very common, is why contribute to open source? So like ओपन सोर्स कोड के साथ जो एक चीज काफी बढ़िया है वो ये है कि लाइक आपको मेन चीज कॉलेज का पर्पस है कि आप सीखने के लिए आए हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप सीख रहे हैं, वो सब ठीक है, बट उसके अलावा जो आपको कुछ सीखना है तो उसका इनिशिएटिव आपको खुद ही लेना पड़ता है. सो ओपन सोर्स का लर्निंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि लाइक आपको, अगर आपके पास सोर्स कोड है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम द कोड. द मेन थिंग इज दैट कि अगर आपको बाहर कोई सॉफ्टवेयर दिखा है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, और आप उस जो आपको सॉफ्टवेयर देख के लगा है कि लाइक इस सॉफ्टवेयर पे बेस मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट हो सकता है, और उसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है मॉडिफिकेशन करने के लिए, सो उस चीज से आप काफी कुछ सीख सकते हैं कि क्योंकि आपके पास पूरा पाथ होगा. अगर आप अभी सोचते हैं कि मुझे कोई सा एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है टेक्नोलॉजी स्टैक. दूसरा चीज होता है कि उसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे, और तीसरा चीज होता है कि उसका लाइक सारा मैनेजमेंट और वो सब कैसे होगा. सो ओपन सोर्स में आपको ये सब चीजें लाइक फ्रीली अवेलेबल होती है, क्योंकि आपके पास पूरा सोर्स कोड होता है आपके हाथ में, और आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो आप सीखते सीखते खुद ही ओपन सोर्स से अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर सकते हैं. और इवन अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आप यूज करते हैं और आपने उसको होस्ट करा है मार्केट में, और आपने उसके लिए चार्ज करा है, तो भी उसमें कोई लाइसेंस के इश्यूज नहीं होंगे. जिस भी कंपनी ने डाला है तो ओपन सोर्स लाइसेंस्ड होते हैं, बट उनमें प्रिविलेजेस आपके पास इतनी होती है कि आप उसको लाइक मोनेटाइज करेंगे तो भी कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं होता है. So the first point is clear: code more, learn more, paying back to the community. Like आप जिस community के लिए काम करेंगे, so आप learn कर रहे हैं और आप उनके लिए contribute करके आप community को भी develop कर रहे हैं. So like आप खुद के साथ में community को भी build करते हैं और आपका network काफी strong हो जाता है. So like global recognition via prestigious open source events, और काफी सारे open source events हो रहे हैं, जैसे Hacktoberfest अभी चल रहा है. It is one of the biggest events of open source. And then yeah, the major events: Google Summer of Code, Hector, and Season of KD, and many more. Or XOE Foundation. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So hello everyone. As Kirtivarsan explained well about what is the open source, why we should contribute to open source. So like I was also wondering about the open source and stuffs. And previously I have participated in GSOG, the event which Kirtivarsan has mentioned, and Hacktoberfest too. So I've decided to like make my own community named Open Mind. And in that community the basic idea was to like हम लोग जब almost third fourth year में होते हैं तो we are like up with the major and minor projects. So sometimes it's like we need help on the projects we are making. Like if I know the front end part, then there might be someone who is well versed with the back end part, so I can take help of him in my source code. So I have planned to make a community on GitHub so that each and everyone can like upload their own project repositories there and can seek to help, or can get help from the seek to help and can help others in their projects. So I have built a community named Open Mind. Okay, so these are basically not in my community, but in all the communities all around the world, the open source roles. These are the open source roles. Like Linux is the first amongst the first open source project that have the world knows, and the author of that project is Linus Torvalds. So there are
many roles in the open source community, like author is one who like whose idea is to like manage the whole project. Owner is the author, which author assign owners. They can be multiple owners, they can be multiple maintainers of that project, and obviously there are lots and lot of contributors, and apart from the contributors there are community members. So this role I like the most, like community members, because like if you are using Linux or any other free software or OS, then you are already a community member. So cheer up, like you are the part of the open source community unknowingly. So how cool is that? So is open source all about software? No. So some open source hardware also exist, like Arduino, Arduino Pilot, and many more. So it's not limited to the hardware. Also, it is not limited to only the contributing to a source code. It can be also you can also contribute to open source using like your content writing skills. Like you can document very well, and like you can take part in a events like GSOD, like Google Summer of Code for documentation purposes, and Google Summer of Code is the another event. Okay, so let's have a quick quiz on how you know free and open source software. FOSS is stand for free and open source software. So let's have a quiz. I want each and everyone to participate in this quiz, and you can post your answers in the comment box in the Google Meet. Okay. So this is Adobe Premiere. Can anyone tell me what is the open source alternative of this? Let's see how many are well versed with the open source right now. Anyone? Hello. Yeah. Okay, I'm audible at least. Okay. So like quiz will be like Kirtivardhan, can you share the screen so that I can see in the comment box? Like I have to go full screen. Okay. Another thing, I have pasted like 3 links. The one of is Summer of Code, and the 2 are for sourceforge.net and opensource.org. So वो जो 2 ऊपर वाली लिंक्स है, ओपन सोर्स और सोर्स फोर्ज, ये 2 वो लिंक्स हैं जिनको लगता है कि ओपन सोर्स के बारे में नॉलेज इनको कम लगता है, या फिर वो सोचते हैं या दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कम्युनिटी ऑफ देयर ओन, कि आप चाहते हैं कि आप खुद के एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बनाएं और उसको is it visible? Yes. So this is Adobe Premiere, and the open source version. Anyone can guess like Apple iMove? No, it's not that. Anyone else? Okay, so it is KDN Live. Yes, this is one. This is that. Okay, next. This is Adobe Photoshop. Does anyone knows what is the alternative of this? Open source alternative of Adobe Photoshop? GIMP. Yes, you can put it on the chat box. GIMP is like right answer. Okay. Now, next. I think this must be answered by everyone present here. What is the open source version of Chrome browser? Come on, guys. Like, okay, Chromium. Yes, it's right answer. Chromium is there, but one more browser is there named Brave. So the answers to this alternatives are not limited. There are multiple of them, but the most popular I have mentioned here.
Okay, next. Yes, Maya. What is the alternative of Maya software used by like designing? Architects use this. Blender 3D. MS Edge also work in V8 engine. Anyone else? Blender? Yes, the answer is Blender. Okay. Next, Adobe After Illustrator. Anyone knows alternative of After Illustrator? So there are some swags for the people who are answering. Like most of the answering are from our community only. So I would like that some people from the outside will answer. So it will be great. So it is Inkspace. Okay, next. So what is the alternative of Windows? Spam on the chat box at least this answer. Yes. Okay, Linux. Yes, GNU and Linux. Okay, this is AutoCAD. So anyone knows used by mechanical engineers? What is the alternative of AutoCAD software? No. Okay. Reveal it. Yes. So it is a free droid. No, sorry. Something named F-Droid. So that is the alternative version. Another. Okay, now okay. So App Store is alternative is F-Droid, and this name I have also forgotten. That what's what name? This is F-Droid. App Store alternative for the free and open source apps. Okay, you do not have to pay any amount of money to host your application source code on this or any application on this. Hmm. So anyone knows Netflix alternative? What is the Netflix alternative in open source? That's interesting. What can be the like? It will be great to know. So Streamio is the open source alternative of this proprietary software. Streamio. यार I was expecting Alt Balaji. कोई तो बोलता है यार. Z5 या Amazon या. Streamio. Okay. So like now I can share my screen. Thank you, Kirti. Another interesting fact, many of you might not know, but this made by Google is open source Android for Android source code, because you can learn, because the race of Android applications, everything is shifting, small screens and stuff. So you should check it out. Okay. So like I want to ask one more question, that have you ever been in a situation where you have saved multiple files? Like when we are doing a project, we might encounter a situation where like we are saving multiple names for the same file. So it is a very cumbersome task. So or just you have done something wrong in your source code and want to go back. So there comes the version control systems. Like these were the very initial version control system used by many big organizations. So Subversion was there, Mercurial, Git, many others. So what is Git? So it is a free and open source platform. Not a platform. It is a tool to manage your repositories, your project files. It was made by Linus Torvald in 2005, and it was used to maintain the very first Linux kernel project by himself. Okay. And at later it was sell to the GitHub organization. How to make sure that the developers always have access to the latest code base. So the maintainers and contributors, like I have said previously, are supposed to review the code
they all like if you are giving a pull request, Siddhant will let you know what is a pull request, how to create it in the next hands-on session coming after on around 15 minutes. So that will be great. So these are some of the hosting services. So you have to keep in mind that Git and GitHub are not same; they are different. And these, the Git are used, Git, Mercurial, and other services are used. And these are the hosting platform. These are just like clouds where your repositories are hosted. So GitHub and Git are different things, and GitLab and Bitbucket are like GitHub only. Okay, let me add Bit. So these are the founders of GitHub. These 4 people. Now GitHub is under the Microsoft. So it was founded in 2008, and additional features like they have automation, automated testing, and DevOps integration APIs. Organizations, GitHub organizations are one of the such things. Our community OpenMind also have a GitHub organization page. You can visit at Kirtivasan, can you share the link of that organization, please? And bug tracker, pull request manager. That's all. GitHub Action is the very good feature of the GitHub, and many more. Okay. So basic structure of an open source project is like this. There is a code base, and in that code base you have a main project code. Then you have a documentation. This is the very important part, because like when someone reads your project, like what is the project, like जब तक मुझे पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट में है क्या, तब तक मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा कैसे. तो उसका डॉक्यूमेंटेशन एक सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगता है. तो वो डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि उसके बाद समझ में आए कि मुझे हाँ ये प्रोजेक्ट है, तो अब मुझे इसमें ऐसे कंट्रीब्यूट करना है. तो डॉक्यूमेंटेशन जो लिखता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर ऑटोमेटेड टेस्ट फॉर मेन कोड प्रोजेक्ट कोड होता है, एंड सपोर्टिंग फाइल्स, फोल्डर्स, डिप्लॉयमेंट और डेवऑप्स, so that are also there. So there is one issue tracker. So what are issue trackers? Issue trackers are nothing but they track the issues, and they are tracking bugs, like minor bug fixes. There are like many tools available on GitHub which can be used as an issue tracker, and developers also use it as a to-do list, like हमने हमारे मेजर प्रोजेक्ट में भी मैंने इश्यूज क्रिएट कर दिए थे मेरे सारे टीम मेंबर्स के लिए, और हमने वो इश्यूज पे ही वर्क करा था फिर. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा अप्रोच लगा था हम लोगों को करने का. यूजर्स कैन ऑल्सो रिपोर्ट बग्स हियर, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट फीचर. And this is also a great feature. Pull request includes the code changes that you have made. Then you ask the project maintainer and owner that like, hey, I have done these changes, so can you pull my changes to your repositories? So he will check that your source code and will merge in the existing repository if he wants to do so. So other projects may or may not have sections depending on various reasons. So a quick demonstration of structure on the real open source on GitHub. So there is a basic, this is provided by GitHub only, repository. So what is a repository? The repository is the location at which the main code base is stored. Fork, what is fork? The repository which stores the copy of the main code base. And we do multiple branches. When the source code becomes big, then we divide into branches so that we can work parallelly on the copies. So there will not be conflict between the branches. There is a process called staging to focus on modified changes. So we can like मैंने एक change किया A, और फिर उसके बाद सडनली एक change B आ गया, लेकिन उसके बाद एक और change आ गया C, लेकिन मुझे अभी C चेंज था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं अभी A को चेंज करके B को स्टेज कर दूंगा और C को पहले चेंज करूंगा और फिर अनस्टेजिंग करके
प्रॉपरली कमिट कर दूंगा. So that's the great feature of version control system staging. There is a feature called commit and save stage modifications, and pushing the changes by committing them, uploading committing changes. Upstream is a pointer which points to the original repository. Okay, there is a upstream and there is a remote. So remote is like your repository on the cloud. So pointers pointing to the repository online. Pull. So you pull the repository in and make your own, make it your version of that project. So download changes from the remote. Okay. So typical GitHub workflow is like this. You create a feature branch, like there is a master branch here. You can see this is the master branch. And if you want to create a feature from that branch, then you have created a branch called feature branch. Commit some changes in that branch, submit some pull request. This workflow will be demonstrated by Siddhant Srivastav in the upcoming 10 minutes. So he will not be creating branch, but he will committing some changes, and he will submit a pull request, discuss proposed changes. He will be discussing some changes, and the maintainer of the repository, and finally they will be merged in the master branch. Okay, so Siddhant, over to you. So there will be a demonstration of that thing which I was talking about. So, hello everyone. Good evening. Am I audible to everyone? Yeah. Okay, so let's start with the hands-on workshop session for this particular open source session. So, सबसे पहले तो आप लोगों के पास GitHub होना चाहिए, या फिर कोई भी एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल जो आपको भी सर ने दिखाए थे उनमें से कोई भी एक, जिसमें आपको बिगिनिंग में आप मतलब जिसमें आप एक एटलीस्ट बिगिनर, आप एज ए बिगिनर फेमिलियर हो, कि आपको पता हो कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं. कि क्योंकि क्या होता है ओपन सोर्स में जब हम काम करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो ओपन सोर्स में जब हम गिटहब की बात करते हैं या फिर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं या टूल्स की बात करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सिमिलर टू इंस्टाग्राम है. इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे आप अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, आप लोग अपना आप कोई भी अपनी चीज को, टैलेंट वगैरह ये इस टाइप की चीजें आप अपलोड करके एक तरीके से देखा जाए तो फेमस होने के लिए करते हैं. सिमिलरली कंपनीज, इंडस्ट्रीज या जो भी प्रोग्राम रिलेटेड या फिर जो भी वर्क रिलेटेड लोग ऐसे होते हैं, वो लोग गिटहब का इस्तेमाल सिमिलर प्रोसेस में करते हैं. पर यहाँ पर उन लोग अपनी फोटोज या अपने ट्रेवल की फोटोज डालने की बजाय अपना कोड या अपना सॉफ्टवेयर या अपना प्रोग्राम को एज ए ओपन सोर्स अपलोड कर देते हैं. तो गिटहब जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि गिटहब कैसा होता है, अगर जिसको नहीं पता हो तो. क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सब लोगों को? या विजिबल. तो ये हमारा DSCS का ऑर्गेनाइजेशन पेज है. ऐसे ही अगर आप गिटहब पे प्रोफाइल बनाएंगे, सिंपल तरीके से आप प्रोफाइल बना सकते हैं. github.com पर जाके आप प्रोफाइल क्रिएट करिए अपनी, उसके बाद आप ऐसी प्रोफाइल पे अपनी अपडेट करिए उसको, उसके बाद आप इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल आ जाएगी. ये ऑर्गेनाइजेशन की है. अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पर आपकी फोटो, आपका नाम और आपकी रिपोजिटरीज आ जाएंगी. अब रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी कुछ भी नहीं होता है. जैसे आपने कोई एक, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो आप एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें बनाते हैं. गिटहब पे जब आप फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का नाम रिपोजिटरी होता है. उस रिपोजिटरी के अंदर आपके सारे फोल्डर्स होते हैं. तो अभी मैं आपको जो डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा उसमें मैं ये तो नहीं आपको बता पाऊंगा कि गिटहब कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या बेसिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत वो अलग चीज है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताऊंगा कि जब गिटहब आप कंप्लीटली कॉन्फ़िगर कर लेंगे आपके सिस्टम्स में, उसके बाद आप कैसे काम करेंगे. तो जैसा कि आपको बताया कि हेक्टोबर फेस्ट एक कंपटीशन है जो ओपन सोर्स को सपोर्ट करता है, जो ओपन सोर्स के ऊपर ही बेस्ड हुआ सॉफ्टवेयर है. तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे मतलब ये बोलूंगा कि आप जाके एक बार इस वेबसाइट को चेक करिए. और इस वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें दी हुई हैं. तो अगर कोई बिगिनर भी है ना तो उसको भी एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ये सिंपल मैटर में दिया हुआ है. उसके बाद में अब हेक्टोबर फेस्ट का रेफरेंस लेके मैं बताऊंगा आपको कि आपको मैं एनकरेज भी करना चाहूंगा कि हेक्टोबर फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए. पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है. आपको जो एक वेबसाइट है, मैं अभी आपको एक चैट में शेयर कर देता हूँ, उस वेबसाइट पे जाना है आपको.
कि आपको ऑलरेडी शेयर्ड भी है, नमन पाटीदार ने भी शेयर करी हुई है, कीर्तिवर्धन ने भी शेयर करी हुई है। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग का बटन आप देख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट हैकिंग के बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे बोलेगा कि साइन इन विद गिटहब। तो अब मैंने आपको बोला कि गिटहब जब आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपकी आईडी एक ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जब आप साइन इन विद गिटहब करेंगे ना, तो मैंने तो ऑलरेडी साइन इन करा हुआ था, इसलिए वो मुझे डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पेज पर फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन आपसे वो डिटेल्स मांगेगा। तो आपको डिटेल्स में ये फीड करना है कि यार मैं एक कंट्रीब्यूटर हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। उसमें अलग अलग ऑप्शंस जब आएंगे तो उसमें आपको देना रहेगा, आपकी डिटेल देनी रहेगी, आपको गिटहब का अकाउंट आपको देना पड़ेगा। जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी आईडी विजिबल हो जाएगी, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन विजिबल हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी आईडी विजिबल हो जाएगी। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपने जितने भी पुल रिक्वेस्ट अभी तक सबमिट करी है, जो मर्ज हुई है या नहीं हुई है, उनका स्टेटस दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में नीचे ये दिख जाएगा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपकी रिपोजिटरी के आगे, आपकी पुल रिक्वेस्ट के आगे अगर ये सिंबल आ रहा है, मतलब कि वो अभी कौन से सेशन में है, वो क्या रिव्यू सेशन में है, क्या वो पेंडिंग है या इनवैलिड है या इनएलिजिबल है या एक्सेप्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी तक में 11 या 12 सबमिशन किए थे, जिसमें से मेरी 3 जो है वो रिजेक्ट हो गई हैं और एक इनवैलिड थी, बाकी सारी मेरी अभी रिव्यू सेशन में चल रही हैं। आपका 14 दिन का टाइम रहता है रिव्यू सेशन का, तो आप ज्यादा से ज्यादा कर दें तो अच्छा है। इसका एक फायदा ये है कि अगर आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन, अगर आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो आपको हेक्टोबर फेस्ट की तरफ से गुडीज भी मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऊपर से आपका ओपन सोर्स का कम्युनिटी में भी जब जाएंगे आप तो आपका वहां पे भी नॉलेज क्रिएट हो। अब ओपन सोर्स में काम कैसे करते हैं, तो ओपन सोर्स में काम करने के लिए क्या तरीका है कि आपको अगर पता है कि आपको क्या कहाँ कौन सी रिपोजिटरी में काम करना है, तो आप डायरेक्ट उस रिपोजिटरी पे जंप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर रिसोर्स आप टैब देख पा रहे हैं क्या, आप एक बार मेरे चैट में रिप्लाई कर दीजिए करें कि आप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़े से नेटवर्क इशू हो रहे थे। तो क्या आपको अक्टूबर फेस्ट की मेरी प्रोफाइल वाली स्क्रीन विजिबल है? ऑलराइट, तो लोग बोल रहे हैं कि विजिबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम टैब है, रिसोर्सेज टैब है, इवेंट्स टैब है, अलग अलग टैब्स पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को रिसोर्स टैब पे जाना है। तो जब आप रिसोर्स टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे और आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या टर्म्स कंडीशंस है। आप वीडियो देखकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके का कंपटीशन होता है, इस साल इसमें क्या नया है, पिछले साल तक कैसा होता था, सब विजिबल यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग डिटेल्स दिख जाएंगे आपको, पार्टिसिपेशन रूल्स दिख जाएंगे, है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ काम करना है, तो आप देखिए, अब मैं तो बिगिनर हूँ, मैंने तो आज तक काम नहीं किया, तो मैं बिगिनर पे जाऊंगा। अगर मेरी ऑलरेडी एक रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है और मैंने इशू असाइन करे हुए हैं, मैं मेंटेनर हूँ, तो मैं मेंटेनर पे जाऊंगा। अगर मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, जैसे कि यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन कौन है, डेव है, इंटेल है, अक्टूबर फेस्ट में गिटहब है, तो ये लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो जाएंगे। फिर कंपनीज हो जाएंगी जो कंपनीज अपनी तरफ से डालती हैं। मैं बिगिनर हूँ, मैं बिगिनर पे जाऊंगा। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा जो भी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया हुआ है, ओपन सोर्स का इंट्रोडक्शन भी है थोड़ा सा। उसके बाद ये 5 जो लिंक्स हैं, ये हाइपर लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन्हीं में काम करना है अभी, क्योंकि आप बिगिनर है। क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस वाले पर, फर्स्ट टाइमर्स ओनली। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे एक वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आपको वो वेबसाइट उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पहली बार ओपन सोर्स में आ रहे हैं या जो पहली बार कोडिंग अपने एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ओपन सोर्स के थ्रू। तो इसमें आपको सबसे काम की जो वेबसाइट है वो है फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस। इस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप एक रिपोजिटरी पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन रिपोजिटरी का नाम है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें एक एक आपको स्टेप दी हुई है कि पहले फोर्क द रिपोजिटरी, क्लोन द रिपोजिटरी, क्रिएट ब्रांच, मेक नेसेसरी चेंजेस, पूरी प्रोसेस है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और मैं एक बार आपको एक सिंपल प्रोसेस करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पे आपको सिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आप सर्च करना DSC S BBB। तो आप DSC S BBB जब सर्च करेंगे तो आपको ये रिपोजिटरी मिल जाएगी, कोई सी भी रिपोजिटरी मिल जाए, आप ओपन करें उसको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले DSC S BBB पे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, ये पहली रिपोजिटरी जो देख पा रहे हैं आप DSC वेबसाइट पे, इस पे जाएंगे आप, ठीक है। आपको ये भी देखना रहेगा कि जिस रिपोजिटरी पे आप काम कर रहे हैं ना उस पे ये टैग्स देखना है। अगर टैग्स में अक्टूबर फेस्ट नहीं लिखा है तो उस पे चेंजेस करने पे अक्टूबर फेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके अक्टूबर फेस्ट के कंपटीशन में वो काउंट नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर तो अक्टूबर फेस्ट लिखा हुआ है, तो आप डीएससी वेबसाइट की रिपोजिटरी में जाएंगे, ये सारे फोल्डर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद मैं तो आपको एक माइनर चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस है इशू के रिगार्डिंग वो आप कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। यहाँ पे रीडमी आप फाइल देख सकते हैं कि इस रीडमी फाइल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, कौन कौन सी फाइलें हैं, क्या क्या है इसके अंदर। अपन को सिंपल है, अपन को यहाँ जाना है कि यार इसमें इश्यूज क्या क्या है, क्योंकि अपन को इश्यूज पे ही काम करना रहेगा ओपन सोर्स में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस पे एक ही इशू क्रिएट करा है, अगर जब हम लोग और आपके रिस्पॉन्स आने लगेंगे तो हम और इश्यूज इसमें बढ़ा देंगे। तो अभी तो फिलहाल एक ही इशू है, यूआई एनहेंसमेंट, इसमें टैग्स लगे हुए हैं, गुड फर्स्ट इशू, अक्टूबर फेस्ट एक्सेप्टेड, है ना। तो ये टैग्स आपको देखने हैं। उसके बाद आप इस इशू पे जब क्लिक करेंगे, इस इशू में हमने बताया हुआ है कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। हमने ये बोला है कि एनी बेटर एंड इफिशिएंट यूआई एनहेंसमेंट इन ओवरऑल वेबसाइट। अब ये जो कोड मैंने पिछले आपको रिपोजिटरी में ये जो कोड के फोल्डर्स और कोड दिखाया था, ये एक्चुअल में डीएससी एसट्रिपल की वेबसाइट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसको हमें और सुधारना है, इसको हमें और इंटरेक्टिव बनाना है, तो उसी लिए हमने इशू भी क्रिएट किया है, जिसमें आप अपनी तरफ से कोड ऐड कर सकते हैं, फाइलें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि इशू क्या है, क्या सॉल्व करना है मुझे इस रिपोजिटरी में। इसमें मैं तो हम लोगों ने क्या डाला है कि आपको यूआई एनहेंसमेंट करना है एफिशिएंट या बेटर कुछ भी तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आप एक फोर्क वाला ऑप्शन देखेंगे, तो ऐसा आपको उसमें भी दिखेगा। आप जब अपनी तरफ से ओपन करेंगे तो वहां भी दिखेगा। तो मैं आपको स्टेप्स बताते जा रहा हूँ, आप चाहे तो या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर एक नोटपैड ओपन करके उसमें लिखते जाइए, ठीक है। मैं 5 से 10 सेकंड में बोलना चालू कर दूंगा, तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप नोटपैड या कुछ ओपन कर लीजिए ताकि स्टेप्स आप लिखने में काम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि जिस रिपोजिटरी में आपको चेंजेस करने हैं तो आप उस रिपोजिटरी में जाएंगे। उसके बाद इशू वाली जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे। जो भी जनरेटेड इश्यूज होंगे आपको वहां लाइन से दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ही इशू है पर मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको जो इच्छा है या आपको जिसमें आता है वो वाले इशू पे आप जाएंगे। उस इशू में आप जाके देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है उस इशू की, कैसे सॉल्व होगा वो। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है वो इशू सॉल्व करने के, तो फिर आप जाएंगे रिपोजिटरी पे। ये जो फोर्क यहाँ पर बटन आप देख सकते हैं, ये बटन क्लिक कर देंगे, है ना। अब वो लोग पूछेंगे कि ये जो डीएससी वेबसाइट की रिपोजिटरी है ये कहाँ फोर्क करनी है, तो आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। जहाँ पे मेरा अकाउंट है सिद्धार्थ 2430, आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जब फोर्क हो रहा होगा तो आपको ऐसा जीआईएफ या फिर एक इमोजी टाइप ये दिखने लगेगा। और जब कंप्लीटली सक्सेसफुल फोर्क हो जाएगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मेरा नाम और मेरी मेरी रिपोजिटरी बन चुकी है अभी फोर्क होने के बाद, ठीक है। तो जब आप फोर्क करेंगे ना तो आपके नाम के आगे डीएससी वेबसाइट लिखा हुआ आना चाहिए, ये वेरिफिकेशन है कि सही से फोर्क हो गई है। अब चेंजेस कैसे करना है, इसमें चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड वाले बटन में जाएंगे और रिपोजिटरी का जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेप थी इशू को ढूंढना, फोर्क करना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कोड में जाके गिटहब रिपोजिटरी का जो कोड है या जो यूआरएल होता है उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने डिजायर्ड फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि अब मान लो मैंने एक डिजायर्ड फोल्डर बनाया, राइट क्लिक करा, न्यू फोल्डर बनाया। आपको मेरी सबको स्क्रीन विजिबल तो है ना। ये मैंने मेरे पसंद का फोल्डर बना लिया है, कोई भी कहीं पे भी मेरे सिस्टम में, ठीक है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए मेरी अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही हो तो, ताकि मैं मतलब आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने अगर फोल्डर बना लिया है तो उसमें अब आपको क्या करना है। अब आपको मैंने बोला था कि गिटहब सेटअप करना है, तो गिटहब में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नेट पे आईडी बना ली और आपका सेटअप हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाकर आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। आपको गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको गिटहब को डेस्कटॉप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। वो स्टेप्स मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी स्टेप्स हो जाएंगी, वो बहुत लंबा चले जाएगा फिर पीरियड अपना। तो आप कर लेना। तो जब वो आपके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज में, तो राइट क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, गेट GUI हियर, गेट बैश हियर। आपको क्लिक करना है गेट बैश हियर पे, तो आपकी एक ऐसी गेट बैश की स्क्रीन खुल जाएगी और आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आप मेरा जो URL है ये आपके करंट फोल्डर का है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी आपके इसमें ऐसा लिखा हुआ आएगा, URL लिखा हुआ आएगा और मास्टर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर मास्टर लिखा नहीं आ रहा है तो आपको क्या गेट स्पेस इनिट ये कमांड चला के एंटर दबा देना है, तो आपकी ये डायरेक्टरी या फिर एक एम्प्टी रिपोजिटरी वो हो जाएगी इनिशियलाइज, तो आप मास्टर ब्रांच में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी अब आपको ध्यान हो तो अभी तक हमने क्या कर चुके हैं, इशू ढूंढ के उसको फोर्क करके क्लोन में से हमने URL कॉपी किया था, URL अभी हमारे पास कॉपीड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे गेट स्पेस क्लोन स्पेस, उसके बाद हम वो रिपोजिटरी का जो एड्रेस है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये वो कॉपी नहीं हो पाया था, एक बार मैं और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ गया, कोड में गया, कॉपी करा, यहाँ गया, यहाँ लिखा गेट क्लोन पेस्ट। देखिए अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो रिपोजिटरी का एड्रेस है वो पेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो लिखा हुआ आ जाएगा क्लोनिंग इनटू DHC वेबसाइट। जब क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप ध्यान आप जब फोल्डर में जाएंगे तो आपकी रिपोजिटरी जो थी उसके नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो जो सारे फोल्डर्स और फाइल थी वो सब यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी आपको। अभी आपको चेंजेस नहीं करना, अभी आप यहाँ जाएंगे और एक ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांच क्यों बनाना है सबसे पहले। अब क्या होता है कि अभी जो आपके पास कोड है ना वो मास्टर ब्रांच का कोड है। गिटहब या गिट जब इस्तेमाल करते हैं तो ब्रांचेस बनती हैं। ब्रांचेस का क्या मतलब है, एक होती है ओरिजिनल ब्रांच, मास्टर ब्रांच बोलते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसी में चेंज कर देंगे ना तो जो हमारी मास्टर ब्रांच का जो कोड है डायरेक्टली उसमें चेंज हो जाएगा। आप अपनी तरफ से जो चेंजेस है वो प्रपोज नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा कि वो चेंजेस आपने अलग से कितने चेंजेस करके बताए। हाँ, हम ये वर्जन कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो पता पड़ जाएगा कि पहले क्या कोड था, नया क्या कोड है। लेकिन स्पेसिफिकली अलग से ब्रांच मर्ज नहीं होगी, और ब्रांच मर्ज नहीं होगी तो पुल रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे सही तरीका क्या होता है कोड में चेंज करने का, अगर आप किसी और के कोड में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच बनानी पड़ेगी। ब्रांच बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा गेट स्पेस CHACKOUT चेकआउट, गिट चेकआउट, -b लिखेंगे फॉर ब्रांच। उसके बाद हम ब्रांच का नाम देंगे। अब जैसे मैंने बोला कि ब्रांच का नाम देंगे तो ब्रांच का नाम कैसे देना चाहिए, ब्रांच का नाम आपका विजिबल रहेगा, जो मास्टर है जिसने जिसकी रिपोजिटरी है उसको विजिबल रहेगा कि आपने क्या ब्रांच बनाई थी, तो उसको इजी रहे समझने में कि आपने क्या एडिशन किया है या आपने क्या अपडेशन किया है। ब्रांच का नाम सिमिलर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं अगर ब्रांच, मैंने बोला था आपसे कि मैं माइनर चेंजेस ही करूंगा, तो मैं ब्रांच का नाम भी सिंपल दे रहा हूँ कि एड माइनर चेंजेस। मैं एंटर दबाऊंगा तो लिखा हुआ आ जाएगा स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच एड माइनर चेंजेस। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मास्टर लिखा हुआ था, मास्टर की जगह पे अब एड माइनर चेंजेस आ गया। तो अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा ना, तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा या कमिट करूंगा तो वो डायरेक्टली जाके मेन वाले कोड में चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। तो रिक्वेस्ट जब जाएगी ना उसी को पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। अभी आगे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे करते हैं। ब्रांच आ गई आपकी। अब ब्रांच आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फोल्डर में, अब जाएंगे हम फोल्डर में और अब हम चेंजेस करेंगे हमारी फाइल में। तो अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को फॉर एग्जांपल सोर्स वाली को इसमें चला गया, उसके बाद में मैं कोर में चला गया। अब यहाँ पे जैसे ये CSS फाइल्स हैं, HTML फाइल्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मान लो मैं होम की CSS फाइल गया, ये फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे बॉर्डर का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो RGB में ये लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि यार मेरे को तो सिंपल रेड कलर की बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेड को फुल कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। जब ये फाइल सेव हुई है तो अब मेरा काम, मैंने माइनर चेंजेस ही करे थे। आप फाइल ऐड कर सकते हैं, नई फाइल ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं, कोड में चेंज कर सकते हैं, कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे अब ये तो बॉर्डर का था, है ना। तो अब मान लो कुछ और चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे कुछ भी मैं नई प्रॉपर्टी डाल दूंगा, COLOR डाल दी, जैसे कलर लिख दिया। अब यहाँ पे या तो मैं कुछ भी हेक्साडेसिमल में लिख दूंगा या नाम लिख दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे चेंजेस कैसे भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, ये तो आपके ऊपर है आपको क्या चेंजेस करना है। आप नई प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, नई फाइल्स ऐड कर सकते हैं, पुराने कोड में चेंज कर सकते हैं। कोई फाइल अगर नहीं है या सही जो फाइल हटाने से फायदा हो रहा है तो फाइल डिलीट भी कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देंगे हम।
अब मैंने यहाँ तो चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि मैंने फाइल में चेंज किए हैं? तो मैं यहाँ जाऊंगा गिट और उसके बाद लिखूंगा status, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अपन ने कोई नई फाइल ऐड नहीं करी है ना, अपन ने पुरानी फाइल में चेंज करा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स, तो डीएससी वेबसाइट नाम का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर में गया मैं और वहाँ ब्रांच बनाई थी। तो उसके अंदर में यहाँ पर लाल कलर से लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। अब चेंजेस हुए हैं तो मतलब कि अपना जो चेंजेस थे वो इसके पास आ गए कि हाँ चेंज हुए, तो अब अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चेंजेस को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंजेस को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा गिट ऐड। अब मैंने कौन सी फाइल में चेंज किए थे, तो मेरे को जाके वो फाइल में मुझे उसका एड्रेस देखना पड़ेगा। तो ये फाइल है, मैं गया यहाँ पर और इसका मैंने जो यूआरएल है, ये यूआरएल आपको पूरा नहीं कॉपी करना है, आपको सिर्फ कितना कॉपी करना है, जैसे मैं अभी कौन से फोल्डर में हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए, डीएससी वेबसाइट नाम के फोल्डर में हूँ जिसमें पूरा कैपिटल है। तो ये पूरा कैपिटल वाला कौन सा फोल्डर है? ये वाला फोल्डर। तो मेरे को इसके आगे का ही पाथ कॉपी करना है। इसमें जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, कोर में जाएंगे, होम यहाँ पर है। तो मुझे सिर्फ इतना ही पाथ चाहिए। कॉपी करा, मैं इधर गया, गिट करा, ऐड करा, ठीक है। यहाँ पे वो पाथ को मैंने पेस्ट किया और मेरी फाइल का नाम दे दिया। फाइल का नाम क्या था? home.css, ठीक है। मैंने एंटर दबाया तो अच्छा, इसमें जो स्लैश थे उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये तो जब कमांड अगर सही चल जाएगा तो ऐसा चलेगा। अब आप नई लाइन पे आ गए, अब आपको वापस से गिट स्पेस status करना है, ठीक है। तो इसमें ये दिख जाएगा, ठीक है, कि ये फाइलों में चेंज हुआ है। तो ये फाइलों में अपन ने तो चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो अपन को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपन ने जो फाइल में चेंज किया था वो ग्रीन कलर में आ जाएगी, अगर आपने सही नाम डाला होगा तो। ये देखिए ग्रीन कलर से आ चुकी है। अब मैंने चेंजेस तो कर दिए हैं, ऐड कर दिया मेरे ब्रांच में मैंने कोड, मेरी ब्रांच में जब कोड आया हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? मुझे मेरे चेंजेस कमिट करना है, ठीक है ना। कमिट मतलब कि मेरे चेंजेस फाइनल है, मैं श्योर हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोड आगे जाए। तो मैं लिखूंगा गिट कमिट स्पेस -m। इसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम क्या कमिट कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि changed चेंज्ड इन home.css फाइल, ठीक है। मैंने ये मेरा जो भी कमिट में मैसेज डालना चाहता था मैंने यहाँ दे दिया। एंटर दबाऊंगा तो मेरी फाइल कमिट हो जाएगी। अब कमिट हो गई है मेरी फाइल। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? अब मेरी फाइल कमिट हो गई है। अब मेरी जो ब्रांच में जो मेरे को चेंजेस करने थे ना वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ब्रांच है वो मैं मेन ब्रांच जो मास्टर ब्रांच थी उसमें मर्ज कर दूं। वो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा गिट पुश। जो मेरी ब्रांच है अब मैं पुश करूंगा उसको, कहाँ पुश करूंगा? ओरिजिनल ब्रांच की तरफ। तो गिट पुश ओरिजिन। अब ओरिजिनल ब्रांच में पुश तो कर रहा हूँ, पर क्या पुश कर रहा हूँ? तो मेरी ब्रांच का नाम क्या है? एड डैश माइनर डैश changes, ठीक है। एड माइनर चेंजेस। मैं जब एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा रिमोट रिपोजिटरी। एक सेकेंड, गेट पुश ओरिजिन। तो अभी तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, वो मेरे सिस्टम का इशू है, कोई टेंशन नहीं है। जब आप ये वाला कमांड चला, तो शायद रिमोट सेट करना भूल गया। हाँ वो मैं ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वो सिस्टम की एरर है, वो भी मैं उसमें कुछ ऑलरेडी चेंज कर रहा था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, आपको स्टेप्स सारी सही है, स्टेप्स में कोई गड़बड़ नहीं है, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। एक बात का ये ध्यान रखना है कि मेरे को शायद मेरी गलती पकड़ में आ गई है। मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने जब फोल्डर में ब्रांच बनाई थी, तो ब्रांच आपको अपने फोल्डर में नहीं बनानी है, आपको पहले उस फोल्डर में जाना है रिपोजिटरी के अंदर जहाँ पे सारी फाइल्स है। जैसे
मैं अगर आपको यहाँ से बताऊं कि मैंने जो एक्चुअल में क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पर ब्रांच क्रिएट कर दी थी। अब यहाँ तो कोई फाइल्स ही नहीं है ना, तो चेंजेस तो वो ट्रैक कर लेगा पर वो पुश नहीं कर पाएगा ओरिजिनल में, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी की फाइल तो यहाँ पर है। इसलिए कोई बात नहीं, आप कुछ भी नहीं करना है। माइनर चेंज है कि जब आप ब्रांच बना रहे होंगे तो आपको सबसे पहले आपको अंदर वाले फोल्डर में चले जाना है। अभी आप यहाँ पर थे गिट बैश में, ठीक है, तो गिट बैश में यहाँ पर थे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीडी कमांड से आपको इस वाले फोल्डर में जाना है जहाँ पे ये वाली मेन फाइलें पड़ी हैं। बस वहां पे ब्रांच क्रिएट करनी है, बाकी सारी प्रोसेस एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, तो जब आप पुश कर देंगे ना, तो पुश करने के बाद क्या होगा, मैं एक बार एक काम करता हूँ, एक मिनट फास्ट वापिस से करता हूँ। ठीक है, चेंज एक सेकंड। ठीक है, तो सी जी स्पेस, ये मैं रिपोजिटरी वाले फोल्डर में आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्रांच क्रिएट करता हूँ एक बार। ठीक है, फटाफट सारी स्टेप्स एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने ब्रांच क्रिएट करी, अब ऑलरेडी मेरी ये ब्रांच तो क्रिएट हो चुकी है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरी नई ब्रांच बन गई है। अब मैं जाऊंगा, ठीक है, अब मैं जाऊंगा सोर्स में, कोर में, होम डॉट सी एस एस में। मैं यहाँ पर एक और चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी 255 कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, मेरी फाइल में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ जाके वापस चलाऊंगा गिट status, तो अब आ जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे src core home dot css आ जाएगा। ठीक है, अब सही चल रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, स्टेटस के बाद अब मेरे को ऐड करना है, तो गिट ऐड, उसके बाद में ऐड क्या करना है, तो ये मैं एज इट इज इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करा, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दिया, मेरा कमांड चल गया और सही तरीके से ऐड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, वापस स्टेटस tus चेक कर रहे थे। हाँ देखो, अब अपन को ये एरर आ गई थी, जो एरर अब नहीं आई है, अपना सिंपल लिखा हुआ आ गया कि मॉडिफाइड आ गया, कौन सी फाइल मॉडिफाई करी। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे ऐड कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कमिट करने हैं मेरे चेंजेस। तो मैं गिट गिट कमिट करूंगा और यही वाला कमिट कर दूंगा मैं। और एक फाइल कमिट हो चुकी है मेरी, यहाँ लिखा हुआ आ गया 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्शन 1 डिलीशन। उसके बाद मैं कमिट करने के बाद गिट पुश वाली जो मेरी कमांड है वो चलाऊंगा, गिट पुश ओरिजिन, ब्रांच का नाम हमने क्या रखा था, -1 रखा था। ठीक है, एंटर दबाऊंगा। अब हमारा प्रोग्राम जो भी हमारा जो ये कमांड्स है वो सही चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रांच में पुश हो रहा है। जब ये पुश हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा न्यू ब्रांच एड माइनर 1 चेंजेस टू एड माइनर 1 चेंजेस, इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा। अब मेन काम आते हैं, वापिस आते हैं। अब ये देखो, तो अब मेरे को ये बताओ कि आपको मेरी गिटहब की जो रिपोजिटरी वाला पेज है वो दिख पा रहा है क्या? हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या, अब ये देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मेन है अपना, अपन ने जो चेंजेस करे थे ना वो चेंजेस तो कर दिए, लेकिन अब वेबसाइट का वो कौन है मास्टर, जो भी मास्टर है कि वो आपका कोड मर्ज करे नहीं करे। उसको कैसे पता पड़ेगा कि आप चाह रहे हो कोड मर्ज कराना, उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीन टिक है और एबल टू मर्ज है। ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कमिट में आपने लिखा था ना, कमिट के डबल कोट्स में देखो, आप यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अपन ने कमिट के डबल कोट्स में क्या लिखा था, चेंज इन होम डॉट सीएसएस। यहाँ भी अगर आप डिटेल्ड कमेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का बटन क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जिस इशू में भेजना चाहते हो ना, तो उस इशू में आपकी चली जाएगी। अब होगा ये सॉरी, अगर होगा ये कि अब मुझे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ही ओनर हूँ, है ना, मैं एक मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए मुझे आ रहा है। आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके इसमें ये लिखा आएगा या तो आपकी ब्रांच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ग्रीन टिक, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑप्शन आएगा उसको रिजॉल्व करने का। उसको आप रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ बटन आ जाएगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का। फिर जो भी आपको लगता है कि यार कोड में ये गलती हो रही है या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सॉल्व करो, वहां से मर्ज करो, फिर ग्रीन टिक आ जाएगा, ऐसा सिंबल बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है, आपका काम हो गया है। उसके बाद जब मैं या फिर हमारी टीम में से कोई भी
जब ये पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेगा और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि आपके जो चेंजेस है वो वैलिड है कि नहीं, मैं कंफर्म मर्ज करूंगा जब, ठीक है ना, तो ये पर्पल कलर का सिंबल बना हुआ आ जाएगा और सक्सेसफुली मर्ज लिखा हुआ आ जाएगा। और एक और चीज, अब अब हम जाएंगे हेक्टोबर फेस्ट पे वापस। क्यों जाएंगे, देखो बताता हूँ। अभी अपन ने पुल रिक्वेस्ट सबमिट करी है, ठीक है ना, तो पुल रिक्वेस्ट सबमिट करी है तो अब हेक्टोबर फेस्ट में भी दिखेगी वो। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो लास्ट वाली, आपकी तारीख लिखी आ गई, ये लिखा आ गया यू सबमिटेड चेंज्ड इन होम डॉट सी एस एस फाइल टू DHCS ट्रिपल वी, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक और PR बढ़ गई। ऐसी आपको 4 PR सही तरीके से सबमिट करोगे तो आपके पास गुडीज आ जाएंगे फ्री में। और ओपन सोर्स में काम करने का, ये तो मैंने बहुत माइनर चेंज करा है और HTML या CSS में करा है। आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सारे कोड सब मिल जाएगा, आपको जिसमें आपको कंफर्टेबल हो ना उसमें चेंज कर सकते हो। एक और बहुत सही तरीका बताता हूँ मैं आपको ये ढूंढने के लिए, आप जाना रिसोर्सेज में, ठीक है। रिसोर्सेज में जाने के बाद आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमको 5 लिंक मिली थी। ये जो वीडियो है जहाँ पर ये ऑप्शन है बिगिनर, मेंटेनर और बिगिनर्स वाली हेडिंग है, इसमें इसमें आप जाएंगे गुड फर्स्ट इशू नाम का एक लिंक है, फर्स्ट टाइमर्स ओनली के जस्ट नीचे वाला। उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज इतना सही है ना, आपको डायरेक्ट वही प्रॉब्लम मिलेगी जिसके आप इच्छा रखते हो। जैसे मैं बोलूंगी यार मेरे को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस है, मैं उनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला यार मेरे को पाइथन का चाहिए, या फिर CSS भी चलेगा, जावा भी चलेगा, C++, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। ये कर लिया, फिल्टर लग गए। अब मैंने बोला कि यार इशू में लेबल क्या क्या होना चाहिए, हेक्टोबर फेस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, हेक्टोबर फेस्ट भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, आपकी जो मर्जी है टैग्स वाली, कि आपको यहाँ पे टैग्स भी ढूंढ सकते हो। सी लैंग्वेजेस के टैग मिलेंगे, बिगिनर के मिलेंगे, इंटरमीडिएट, प्रो, ये सब के। फर्स्ट टाइमर हूँ मैं बिगिनर हूँ या मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं फ्रंट एंड का हूँ, मैं बैक एंड का हूँ, है ना, या फिर मेरे को एल्गोरिथम्स का करना है, वो टैग्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। फिर रिपोजिटरी के नाम आ जाएंगे आपके पास, जो जो भी फिल्टर होके आई है उसमें से भी कर सकते हो कि रिपोजिटरी के नाम क्या क्या है, उसके अंदर ये सब इश्यूज मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, मैं हूँ और मैं बिगिनर हूँ, तो मैंने पाइथन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बिगिनर सिलेक्ट कर लिया, तो ये आ गई, ठीक है। अब उसने बोला कि वेज टू कवर अ डिस्टेंस इन पाइथन, एक ही आ जाएगा, मिनिमम पार्टीशन इन पाइथन 9 अक्टूबर, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली, अब मेरे को इस पे जाना है तो मैं एक बटन दिख रहा होगा आपको, गो टू इशू पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट उस रिपोजिटरी के इशू पे जंप कर देगा। और ये देखो मैंने आपको बोला था ना कि आपको पता रहेगा कि रिपोजिटरी में क्या करना है, ये लिखा हुआ क्या करना है, ठीक है। उसने बोला है कि आपको पाइथन में एक फंक्शन बनाना है जो ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने टैग भी लगा दी कि टैग क्या क्या है। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, फोर्क करना है। फोर्क करेंगे तो मेरी ऑलरेडी फोर्क्ड है, आप आपकी आइडिया है कि आपने फोर्क करा, कोड पे गए, कोड कॉपी करा, बस फिर उसके बाद जो मैंने गिट के स्टेप्स बताई है ना वो फॉलो करना है। एक काम करते हैं कि मैंने जो स्टेप्स है ना एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई थी, ठीक है, तो मैं आपको चैट्स में शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, क्वेरी लग रही हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फाइल शेयर कर देता सिद्धार्थ, हूँ। जो गिट का जो गिट बैश पे हिस्ट्री कमांड चला के जो हिस्ट्री है उसमें फॉन्ट थोड़ा बड़ा करके सबके लिए अवेलेबल करा दो ताकि वो स्क्रीनशॉट ले सके। एक सेकंड, मेरे को वापस से एक बात बता देना। हाँ, क्या चीज? हाँ, यहाँ पे हिस्ट्री कमांड टाइप कर, टैप कर दे, टैप कंप्लीशन, हाँ ठीक है, हिस्ट्री टाइप करेगा तो ये यहाँ से कमांड या तो कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट कर दे, या फिर जो कमांड्स उन्हें अभी तक यूज करी है सिर्फ पुल रिक्वेस्ट के लिए उनको हाईलाइट कर दे ताकि स्क्रीनशॉट ले सके उसका। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है। और 431 पे जो दिया हुआ है ये वाला कमांड चलाना है आपको। और ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल तो हम लोगों ने कॉपी किया था, तो ये यूआरएल आप आपकी जो भी रिपोजिटरी है उसका कॉपी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्टेप्स है सारी। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? या थोड़ा जूम इन कर देना। इसका बस बस स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादा ये हो गया। स्टेप एक एक के बाद एक स्टेप आप जब लेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टेप में कंफ्यूज होते हैं, कमांड में कंफ्यूज होते हैं, तो नेट पे सब कुछ बहुत इजीली तरीके से अवेलेबल है। और नहीं तो आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी आपकी हेल्प करवा देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो।
लिए स्क्रीनशॉट आप लोग। डीएससी का जो पेज है ऑफिशियल, लाइक एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जो डीएससी का पेज है ट्रिपल डीएससी का, जो गूगल स्टूडेंट क्लब ने हमको प्रोवाइड करा प्लेटफॉर्म, उससे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक हम अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको वहीं पे, और हम सब एक ही नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। थैंक यू सिद्धांत, अच्छा बताया तूने, बढ़िया सब कुछ। पीआर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको समझ में आया ही होगा। तो सब हैकटोबर फेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और ओपन सोर्स इज ऑल अबाउट गिविंग टू द कम्युनिटी, सो आई थिंक everyone will do that. And I have shared some links, like if you want to join our mailing list of open source communities, you can join at support@openwine.xyz. And in this DSC history will be link another link. You can find all the links associated with the DSC, so you will get to know about the further events on that links. And I would request all of you to fill the feedback form, so that it will give us more insights to like how we have to do further events. Apart from that, I have shared some resources on the open source and how to get started. Like if you want to like build your own project on the open source, then how to do that. So certain resources I have shared. And if you want to join the DSC mail WhatsApp group, then that link is also provided in the chat. So I think yes, okay, I think we are at the end of the event. It's already 7. So I Anyway, would just- also now the session for the Q&A. Let's have some Q&A sessions. Are there any questions? There are a lot of, I think, but like no one wants to ask. guys please feel free to ask questions यार, हम लोग भी तुम्हारे एज ग्रुप के ही हैं यार। हम लोगों ने भी खुद ही सीखा है, हम लोगों ने भी आपस में मिलके सीखा है या किसी से सीखा है। तुम लोग को कोई भी माइनर से भी डाउट्स हो या कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लो, अभी हम क्लियर कर देंगे। उसके अलावा तुम व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मेल आईडी हमारे उस पर अवेलेबल है डीएससी के पेज पर, मेन पेज पर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी इसलिए अभी क्वेश्चन पूछना ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि अभी हमारे पास सारे रिसोर्सेज या वेबसाइट अवेलेबल है। अगर तुम्हारा जो डाउट है हम लोग अभी ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट कोई भी अनम्यूट doubt करके हो भी बोल सकता है। ओपन, यहाँ पे 3 चीजें मेन इंट्रोड्यूस हुई है अभी, अगर जो कि SBB के हैं या फिर कोई बाहर के भी है। एक ओपन माइंड ओपन सोर्स कम्युनिटी, दूसरा DSC। अगर DSC कैसे ज्वाइन करना है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी टीम बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू DSC और ओपन माइंड or any other thing, then you can like ask like how to apply or how to do things. और ओपन सोर्स में भी हैकटोबर फेस्ट के लिए कुछ अगर है, क्योंकि आगे अभी 24 पुल रिक्वेस्ट भी एक इवेंट है वो भी आ रहा है, तो वो दिसंबर में होता है।